Students, next topic is preparation of colloids, or you can say preparation of colloidal solution. The first type of preparation, the first method of preparation is chemical method, and the second one is electrical method या electrical disintegration, and the third one is peptidization. Third one will be peptidization. So there are three methods to prepare a colloidal solution or colloids. Number one is chemical method, second one is Bradig's method बोलते हैं उसको, electrical method भी बोलते हैं, electrical disintegration या Bradig's method, and the third one is peptidization. So one by one we will see what happened in these three methods. The first one is chemical method. Chemical method, as its name suggesting, the chemical reaction takes place. We have arsenic oxide and hydrogen sulfide, H2S and As2O3. They both react with each other. This reaction is called double decomposition reaction. They react with each other and arsenic sulfide is formed in water. Water is also formed, arsenic sulfide is also formed, and arsenic sulfide is a colloidal solution. जो सोल का मीनिंग है colloidal solution. So arsenic sulfide is a colloidal solution. So this is a chemical method. Chemical method means two chemicals are there, they reacting with each other with a reaction known as double decomposition reaction, and the product is formed in the form of a colloidal solution. Yeah, you can also call it sol. So arsenic sulfide plus water. So in what is a dispersion medium? In water it is colloidal particles are floating. So this is called chemical method. Another chemical method is for sulfur colloidal solution of sulfur. The two reactants which react, sulfur dioxide and hydrogen sulfide. So H2S and SO2 react and 3S will form in the form of colloidal sol. So sulfur is formed in the form of colloidal sol and H2O. So H2 is a dispersion medium, and in this dispersion medium sulfur particles are floating as a colloidal sol. So these are two methods, chemical methods. There are other methods are also 2-3 methods are more here, but I have explained only two. So the second one is electrical disintegration और Bradig's arc method. ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मेथड है. इसको समझना पड़ेगा, ऐसे नहीं ये अगर मैं नोट्स वैसे भेज रहा हूँ सिर्फ पढ़ के नहीं पता चलेगा, इसको समझना पड़ेगा बच्चों. देखो क्या होता है, इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं. मैंने आई हैव ट्राई टू एक्सप्लेन इट. दो क्या होते हैं हमारे पास, इलेक्ट्रोड्स होते हैं. इलेक्ट्रोड्स किसके होते हैं? ये मेटल्स के. ये मेटल के दो इलेक्ट्रोड हैं. इस मेटल के ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं इनमें क्या होते हैं, हमारे पास छोटे छोटे एटम्स होते हैं, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो यहाँ पे एक आर्क सेट किया है. ये मेटल के दो इलेक्ट्रोड है. इसको पहले तो जो डिस्पर्जन मीडियम में डिप है, ये जो मैंने ऐसे किया, ये डिस्पर्जन मीडियम है. डिस्पर्जन मीडियम मतलब कोई लिक्विड है. यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल आर्क सेट किया, इसको आर्क बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल आर्क. व्हाट हैपन, दिस इलेक्ट्रिकल आर्क प्रोड्यूस so much heat, very high temperature. Because of this very high temperature, these metal will vaporize. First these metal electrode will vaporize. Some of the atoms of these metal will vaporize, and when they vaporize then they will go into the dispersion medium. कोई भी डिस्पर्जन मीडियम मान लो वाटर है तो उसमें ये चले जाएंगे. ये इसके वेपर बन के, सॉलिड थे जो मेटल इलेक्ट्रोड, इसके वेपर बन के किस में चले जाएंगे, डिस्पर्जन मीडियम में चले जाएंगे. तो वहाँ जाके ये कंडेंस हो जाएंगे, वहाँ जाके ये जुड़ जाएंगे और क्या फॉर्म कर देंगे, कोलाइडल सॉल्यूशन. तो ये पहले मेटल थे, लेकिन ये इस आर्क की, इलेक्ट्रिकल आर्क की वजह से, हाई टेम्परेचर की वजह से, दे मेल्ट डाउन एंड वेपराइज, and because of the formation of vapor they will go into the dispersion medium and form a colloidal particle. So this method is called Bradig's arc method or electrical disintegration method. Very important method to understand. After that, the next method to prepare colloidal solution is peptidization. Peptidization क्या है, इसको समझो कि peptidization क्या है. अगर आपने
पेप्टाइजेशन को समझ लिया तो आपको पता चल जाएगा कि कोलाइडल सोल्यूशन को कैसे बनाना है। होता क्या है आमतौर पे, जो कोलाइडल सोल्यूशन के सपोज यहाँ प्रेसिपिटेट्स बन गए हैं, प्रेसिपिटेट्स का मतलब जुड़ गए हैं, ये कोलाइडल सोल्यूशन है जो जुड़ गए हैं। कोलाइडल सोल्यूशन क्या होता है, जिसमें पार्टिकल का साइज कितना होता है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक। If the particle size is between 1 to 1000 nanometer, that is called colloidal particle. But now these colloidal particles formed an aggregate which have size more than 1000 nanometer. So this is not called colloidal solution, this is called precipitates. इसको हम बोलते हैं precipitate, ये precipitates हैं। तो ये जो precipitates हैं हमारे पास, अब ये कोलाइडल सोल्यूशन नहीं है, इन प्रेसिपिटेट्स को अगर हमने बनाना है कोलाइडल सोल्यूशन, दोबारा इन प्रेसिपिटेट्स को क्या बनाना, हमने कोलाइडल सोल्यूशन बनाना है, उसी प्रोसेस को बोलते हैं पेप्टाइजेशन। व्हाट इज द पेप्टाइजेशन? पेप्टाइजेशन इज द कन्वर्जन ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, नहीं कन्वर्जन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, ये क्या है अभी प्रेसिपिटेट्स है, ये कोलाइडल पार्टिकल नहीं है, कन्वर्जन ऑफ द प्रेसिपिटेट्स इनटू कोलाइडल पार्टिकल बाय एडिशन ऑफ, इसमें क्या डालना पड़ेगा, कुछ ऐड करना पड़ेगा, बाय एडिशन ऑफ सम इलेक्ट्रोलाइट, by addition of some electrolyte. So conversion of precipitates, freshly prepared precipitates into colloidal solution, colloidal solution में जो है पार्टिकल अलग अलग हो जाते हैं, ये जो जुड़े हुए हैं वो अलग हो जाएंगे। तो conversion of precipitates into colloidal particles या colloidal solution by addition of some electrolyte is known as peptidization. So it is the process of converting precipitates into colloidal solution by adding some electrolyte। और उसमें क्या डालना पड़ता है, हमें थोड़ा सा डिस्पर्जन मीडियम भी डालना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा डिस्पर्जन मीडियम भी डालना पड़ेगा, साथ में थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइट भी डालना पड़ेगा। सो ये हमारे पास कोलाइडल सोल्यूशन बन जाएगा। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन का मतलब है ये हमारे प्रेसिपिटेट्स हैं, प्रेसिपिटेट्स का मतलब है ये जुड़े हुए हैं पार्टिकल, इन हैवी हैं ये, इनका जो पार्टिकल साइज़ है, इनका जो साइज है इस जो प्रेसिपिटेट्स का, इट इज़ मोर देन 1000 नैनोमीटर एंड इट डज नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ colloidal solution. But when we add electrolyte in it, when we add some dispersion medium in it, it can be converted into colloidal particles. So this process of conversion is called peptidization. और एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और भी है इसमें कोगुलेशन, कि कोगुलेशन क्या होता है। सो कोगुलेशन को भी समझना जरूरी है, कोगुलेशन क्या होता है, व्हाट इज़ कोगुलेशन। कोगुलेशन का मतलब ये होता है, उल्टा होता है पेप्टाइजेशन का। अगर हमारे पास कोलाइडल सोल्यूशन है, इसको हमने किस में बदल दिया, प्रेसिपिटेट्स में। वी हैव कोलाइडल पार्टिकल्स, कोलाइडल सोल्यूशन, एंड इफ वी कन्वर्ट इट इनटू प्रेसिपिटेट्स, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड कोगुलेशन। ये भी एक कोगुलेशन एक टर्म है, कोगुलेशन। व्हाट इज कोगुलेशन? द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग कोलाइडल पार्टिकल एज प्रेसिपिटेट। ये जो कोलाइडल पार्टिकल है अगर ये नीचे बैठ जाएं, सेटल हो जाएं एज ए प्रेसिपिटेट्स, दैट इज कॉल्ड कोगुलेशन। और ये प्रेसिपिटेट्स को हम दोबारा फिर कोलाइडल सोल्यूशन बना दें, इसको क्या बोलते हैं हम, पेप्टाइजेशन। So both terms are very important, coagulation, precipitates, these terms are just opposite of each other. And the next topic is purification of colloids, प्योरीफिकेशन ऑफ कोलाइडल सोल्यूशन। ये जो हमारा कोलाइडल सोल्यूशन है इसको प्योरीफाई कैसे करना है ये हमारे पास है। तो सबसे पहला मेथड है डायलिसिस। डायलिसिस में क्या करना है, हमारे पास सपोज कोलाइडल सोल्यूशन है, हमारे पास क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन है हमारे पास। ये जो हमने रखा है, यहाँ ये कंटेनर है, इसमें वाटर है, इधर से वाटर आ रहा है, इधर से जा रहा है, ये बाहर है। लेकिन ये जो हमारा एक थैला सा है यहाँ पे एक, इसको क्या है, ये इसके अंदर क्या भरा हमने, कोलाइडल सोल भरा है। ये क्या है, कोलाइडल सोल भरा है। ये जो पार्टिकल है, जो कोलाइडल पार्टिकल है, लेकिन कई बार कोलाइडल पार्टिकल जो कोलाइडल सोल्यूशन है इसमें कुछ ना कुछ क्या होती हैं, इम्प्योरिटीज़ भी होती हैं। कई बार कोलाइडल सोल्यूशन में क्या होती है, कुछ इम्प्योरिटीज़। तो इन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने का मेथड ही होता है डायलिसिस। तो कैसे इसका मेथड क्या है कि इसको हमने एक सेमी परमिएबल जो ये कपड़ा है, ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बना हुआ है। सो देयर आर सम होल्स इन इट। सो इन होल्स में से ये जो इम्प्योरिटीज़ है जिनका साइज़ कम है, ये यहाँ से पास हो जाएंगी। ये जो इम्प्योरिटीज़ है यहाँ से क्या हो जाएंगी, पास हो जाएंगी। पास होकर कहाँ चली जाएंगी, ये वाटर में चले जाएंगी। और वाटर ये रनिंग है, यहाँ से वाटर आ रहा है, यहाँ से वाटर जा रहा है, ये वाटर में मिलके यहाँ से
चली जाएंगी, यहाँ से रिमूव हो जाएंगी. सो द इम्प्योरिटी प्रेजेंट इन द कोलाइडल सोल्यूशन कैन बी सेपरेटेड, कैन बी रिमूव्ड वाई द प्रोसेस ऑफ डायलिसिस. इन डायलिसिस दीज कोलाइडल पार्टिकल्स आर फिल्ड इन ए cloth which is semi permeable in nature. Semi permeable means there are some pores in it. ये जो क्लॉथ है इसमें क्या होता है, कुछ पोर्स होते हैं और वो पोर इम्प्योरिटी को अलाउ करते हैं कि वो चले जाए, क्योंकि इम्प्योरिटी का साइज़ है वो छोटा होता है पार्टिकल का और पोर साइज़ भी छोटा है. लेकिन जो बिगर साइज़ के कोलाइडल पार्टिकल है इनको ये अलाउ नहीं करते, तो ये इम्प्योरिटी जहाँ से रिमूव हो जाती है, कोलाइडल पार्टिकल रह जाते हैं. सो इस तरीके से हम इसको प्योरीफाई कर लेते हैं डायलिसिस की मदद से. दूसरा होता है इलेक्ट्रो डायलिसिस. इलेक्ट्रो का मतलब होता है अगर ये इम्प्योरिटीज़ है, अगर वो उन पे कोई चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रो लगा देंगे, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज का लगा देंगे. अगर इम्प्योरिटीज़ का मान लो पॉजिटिव चार्ज है उन पे, तो वो नेगेटिव की तरफ क्या होंगी, ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट होंगी. जब वो ज़्यादा तेज़ी से अट्रैक्ट होंगी नेगेटिव वाली, तो जल्दी से वो पास हो जाएंगी इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से और जल्दी से ये प्रोसेस है डायलिसिस का फास्ट हो सकता है. उसके बाद अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन नॉर्मल जो फिल्टर पेपर होते हैं उनका जो पोर साइज़ है, नॉर्मल फिल्टर पेपर्स हैं उनका पोर साइज़ बहुत ज़्यादा होता है. तो अगर हमने उसमें से कोलाइडल पार्टिकल, जिसमें कोलाइडल पार्टिकल भी है, इम्प्योरिटीज़ भी है, उनको अगर हमने अलग करना है तो ये एक नॉर्मल फ़िल्टर काम नहीं आते, क्योंकि नॉर्मल फ़िल्टर में क्या है, नॉर्मल फ़िल्टर पेपर में पोर साइज़ ज़्यादा है, इसमें से हमारा कोलाइडल पार्टिकल भी बाहर जा सकते हैं, कोलाइडल पार्टिकल भी बाहर जा सकते हैं. तो इसलिए इस नॉर्मल फ़िल्टर पेपर को हम एक सोल्यूशन में डिप करते हैं. उस सोल्यूशन का नाम होता है कोलॉइडियन. सो कोलॉइडियन सोल्यूशन में हम डिप करते हैं इसको. तो उसमें डिप करने की वजह से इसका जो पोर साइज़ है वो कम हो जाता है, इस फिल्टर का जो पोर साइज़ है वो कम हो जाता है. तब ये बन जाता है अल्ट्रा फिल्टर. फिल्टर पेपर का जो पोर साइज़ ज़्यादा होता है उसको हम एक सोल्यूशन, कोलॉइडियन सोल्यूशन, ये नाइट्रोसेलुलोज का सोल्यूशन होता है. सो इसमें हम डिप करते हैं. Then the pore size of this filter paper will decreases, and now if you filter, only impurities will go outside, the colloidal particle will remain here and colloidal particle can be purified. So this is called ultrafiltration. After ultrafiltration there is a ultracentrifugation. ultracentrifugation का मतलब ये है कि ये अगर हमारे पास मान लो एक कोलाइडल सोल्यूशन है, कोलाइडल सोल्यूशन में क्या है, कोलाइडल पार्टिकल्स भी हैं, इम्प्योरिटीज़ भी हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको, इस पूरे सोल्यूशन को घुमाते हैं ऐसे सर्कल में, ऐसे बड़ी तेज़ी से इसको ना सर्कल में एक घुमाते हैं इसको बहुत जल्दी, सेंट्रीफ्यूगेशन कहते हैं. उससे क्या होगा, ये जो कोलाइडल पार्टिकल है वो नीचे बैठ जाएंगे. जब हम इसको घुमाएंगे तो कोलाइडल पार्टिकल क्या नीचे बैठ जाएंगे, जो इम्प्योरिटीज़ है वो ऊपर तैरने लग पड़ती हैं. इम्प्योरिटीज़ कहाँ तैरने लग पड़ती हैं, ऊपर. इम्प्योरिटीज़ ऊपर तैरने लग पड़ेंगी, कोलाइडल पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे. इम्प्योरिटीज़ को हम ये डिकेंटेशन से ये बाहर कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्योरीफिकेशन हो सकता है. तो इसको बोलते हैं अल्ट्रा प्योरीफिकेशन. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे.